अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। In previous lectures, we discussed about the definition of integration, its basic concepts, geometrical interpretation of integration, and some methods like substitution method of integration. This is actually the series of lectures we are creating for you on integration. You can watch other lectures of this series as well, and you can give us feedback in the comment box. You can write in the comment box about the lectures, about the series of lectures, and what type of lectures you want from us. You can write it as well. So right now we are going to discuss about the integration by parts. जब हम integration by parts की बात करते हैं, we talk about the integration of such functions which are written as the product of two or more than two functions. Like अगर हमारे पास कभी function है integration of e raised power x into x, इस टाइप की फंक्शंस हैं जिसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व हों, ऐसे इंटीग्रल्स को हम कैसे इवॉल्वेट करें, सॉल्व करें, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, जिसे हम यूवी integrals भी कहते हैं। If we have a function which is written in the form of u into v, so its integration is u into integration of v minus integration of differentiation of u integration of v dx and then whole dx. This is how we integrate a function which is written in the form of u into v. ठीक है, ये जनरल मेथड है, ये जनरल तरीका है जिससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इस पैटर्न के। ठीक है, इफ वी हैव अ फंक्शन f of x into g of x and we are supposed to find out the integral of u and v, we know that differentiation of uv, that is u into differentiation of v plus v into differentiation of u. If we have a function f of x into g of x, इसकी differentiation हम लिख सकते हैं f of x into differentiation of g of x plus g of x into differentiation of f of x, or you can simply write f of x into g dash x plus g of x into f dash x. ठीक है, this is differentiation of f of x into g of x. ठीक है, अब हम इसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे, so I can write integrate both sides. Integral and differentials are inverse processes or inverse operations, so integral and differential will cancel out. Here we get only f of x into g of x. Then we have integration of f of x g dash x dx plus integration of g of x into f dash x dx. This is how we can find out the integration from this given फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इफ वी टेक u इज इक्वल टू f ऑफ x एंड v इज इक्वल टू f g डैश x, नॉट f डैश x बल्कि g डैश x। यहां से आप देख सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v इज सिंपली g ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट बिकम्स f ऑफ x into g of x के बदले इंटीग्रल ऑफ v dx, और f of x के बदले यहां पे मैं लिखूंगा u, because we have taken f of x equal to u. This is then integral of u, because f of x is u, g dash x is v dx plus integral of g of x के बदले इंटीग्रल ऑफ v dx into f dash x के बदले मैं दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ u। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड आई कैन राइट, अगर हम यहां लिखेंगे दिस इज इंटीग्रल ऑफ, यहां मैं लिखूंगा u इंटीग्रल v dx, ये वाला पोर्शन जो है मैं इस साइड ले आऊंगा, दिस बिकम्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u v dx. सो इन नटशेल we came to the conclusion that integration of u into v, that means this integral can be written as u into integration of v dx minus integration of differentiation of u into integration of v dx then whole dx. इस तरह से हम देख सकते हैं कि u v फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम
कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास है e रेज़ पावर x और x की फंक्शन है या x इंटू e रेज़ पावर x की फंक्शन है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वेरी इंटीग्रल. हियर u के बदले है x और v के बदले है यहां पे e रेज़ पावर x. हम लिख सकते हैं दिस इज u और यू कैन से x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर x dx माइनस integration of differentiation of x into integration of e raised power dx then whole dx. or you can say x e raised power x की integration आप पहले से ही जानते हैं, that is e raised power x. so this is e raised power x minus integration of differentiation of x is 1 and integration of e raised power x is e raised power x dx. on simplification we can get e raised power x into x माइनस यहां पे फिर रह जाता है इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर x. सो हम लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर x dx. देन x e रेज़्ड पावर x, अगर हम देखेंगे e रेज़्ड पावर x की इंटीग्रेशन दैट इज अगेन e रेज़्ड पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. यू कैन टेक e रेज़्ड पावर x आउट एंड वी राइट e रेज़्ड पावर x into x minus 1 plus c is the answer of this very integral. Dear students, इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम फंक्शंस या कैसे हम इंटीग्रल्स इवॉल्वेट करेंगे जो u इंटू वी फॉर्म में लिखे गए हों. ठीक है, लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी है, कभी कभी उल्टा हो जाता है अगर हम चेंज करेंगे. जिस तरह मैंने यहां पे लिखा x इंटू ई रेज़ पावर x. क्या होता अगर मैं पहली ही फंक्शन v मानता और दूसरी फंक्शन u मानता? तो उस सूरत में क्या होता? लाइक अगर यहां पे मैंने लिखा x into e raised power x, sometimes the questions are asked like this: find the integral of e raised power x into x. अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, let's try to solve this and we take e raised power x as a first function and x as the second function. What will happen? Now see, this is e raised power x into integration of v, that is x dx, minus integration of differentiation of e raised power x into integration of x dx whole dx. यहां पे हमने एक गलत सिलेक्शन की. हमने पहली सिलेक्शन जो है, पहली फंक्शन जो है e raised power x मानी and then we take x as the second function. तो यहां पे गलत सिलेक्शन करके देखिए हम किस नतीजे पे पहुंच जाएंगे. दिस इज e raised power x. अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, दिस इज x square by 2. then we have minus integration of differentiation of e raised power x is e raised power x, then we have x square divided by 2 dx. देखिए यहां पे x का पावर 1 था एंड यहां पे एक बार इंटीग्रेशन करके x का पावर जो है वो 2 आ गया. अगर हम कंटिन्यूअसली इसी तरह करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x का पावर 3 आएगा. देन वी गो ऑन विद द सेम पैटर्न और ये जो x का पावर जो है बढ़ता जाएगा एंड वी विल लैंड नोवेयर. तो इस तरह से गलत सिलेक्शन की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाया. इसलिए अगर आप भी गलत सिलेक्शन करेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत पर कर पाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, नाउ क्या मसला है, क्या हमने यहां पे गलत किया? यहां पे वी टुक x as u and e raised power x as v, and here we took e raised power x as u and x as v. यहां पे हमने पहली फंक्शन e raised power x मानी एंड सेकंड फंक्शन को हमने x माना. ठीक है, यहां पे x को हमने पहली फंक्शन माना एंड e raised power x को हमने सेकंड फंक्शन माना. और ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है. अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सी फंक्शन को हमें किस एंगल से या कब हमें सिलेक्ट करना है या चूज करना है? याद रखिए, द रॉन्ग सिलेक्शन विल लैंड यू नोवेयर. सही सिलेक्शन से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. इसके लिए एक पैटर्न है या एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, उसकी मदद से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. और वो जो वर्ड है, वर्ड क्या है? आसान है याद रखना, I L A T E. ठीक है, इस पैटर्न से या इस सीक्वेंस से आपको फंक्शन सिलेक्ट करने हैं. I means inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions means sin inverse x, cos inverse x and tan inverse x, etc.
and L stands for logarithmic functions like log of x or log of x square plus 3 etc. This L stands for the logarithmic function, I stands for the inverse trigonometric functions, and then we have A, that is algebraic functions, और algebraic functions में आप polynomial भी काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद T जो है ये है trigonometric functions, और trigonometric functions आपको पता है sin x है, cos x है, tan x है, sec x है, cosec x है, cot x है, और इसके बाद E, the last but not the least choice, that is E stands for exponential functions like e raised power x और a raised power x। इस सीक्वेंस से अगर आप सिलेक्शन कर पाए तो आप सही सिलेक्शन करते हैं, और अगर आपने सिलेक्शन इस सीक्वेंस से नहीं किया तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो लेकिन यहां पे एक्सेप्शनल केस है, अगर t और e है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, यहां पे ये एक यहां पे जिसे हम कहेंगे इसका ड्रॉबैक है, यहां पे आपको पहले e ही सिलेक्ट करनी है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिलेक्ट करनी है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेक्ट करनी है। लाइक अभी हमने यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा x e रेज्ड पावर x, अगर हम x देखें दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, e रेज्ड पावर x देखें दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट वन। ये आपको जहन में रखना ही नहीं है कि उसने किस सीक्वेंस से दिया है, आपको पूछने वाले ने, वो आपको जहन में नहीं रखना है, आपको सिर्फ आइलेट जहन में रखना है। इस हिसाब से आपको फंक्शंस या इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। लाइक अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है I इज इक्वल टू x log of x dx, यहां पे दो फंक्शंस है u और v, लेकिन अगर आप देखेंगे x जो है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, log x जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, सीक्वेंस के हिसाब से पहले log फंक्शन हमें चूज करना है, तो हम लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे log of x into x dx, यानी ये फंक्शन u कंसीडर करनी है और ये फंक्शन v कंसीडर करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स log of x into integration of x dx minus integration of differentiation of log of x into integration of x dx whole dx। सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना है आइलेट का। तो हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज log of x, देन वी हैव टू इंटीग्रेट x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन integral differentiation of log of x is 1 by x and integration of x is x square divided by 2। अगर हम यहां देखेंगे this is x power 2 and this is x power 1, यहां का x और ये x एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है x square by 2 log of x minus 1 by 2 constant है, I'll take it out and I can write integral of x dx। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log of x माइनस 1 बाई 2, x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, सो I becomes x स्क्वायर बाई 2 log of x minus 1 by 4x square plus c। This is the required answer of दिस इंटीग्रल। और यहां पे भी अगर आप गलत चॉइस करेंगे, आप पहले log x या x कंसीडर करेंगे फिर log x कंसीडर करेंगे, यू विल लैंड नो मीन्स लैंड। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप आइलेट फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो मेथड है इसमें नेसेसरली आप आइलेट फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम इसी पैटर्न के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद आपके लिए भी कुछ होम असाइनमेंट रखेंगे जो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक x log x तो हमने किया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर फंक्शन दैट इज x tan of x। लेट I is equal to x tan, let's first of all solve x sin x dx, simpler one। अगर ये इंटीग्रल है आपको सॉल्व करना या इवैल्यूएट करना है, ऐसे इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको ये नहीं देखना है कि इंटीग्रल या क्वेश्चन पूछने वाले ने किस सीक्वेंस में रखा क्वेश्चन को, बल्कि आपको आइलेट देखना है, पहले कौन सी फंक्शन हमें लेनी है फिर उसके बाद दूसरी कौन सी लेनी है। पहले अगर आप देखेंगे x इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड sin x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
तो एल्जेब्रिक पहले, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सीक्वेंस बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो हम इसी सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। x को हम पहली फंक्शन यानी u मानेंगे और sin x को हम दूसरी फंक्शन यानी v मानेंगे, ठीक है। लेट्स नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। दिस इज x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx minus integration of differentiation of x. Then we have integration of sin x dx whole dx. ठीक है, तो ये है x. What is integration of sin x? That is minus times cos x. Then we have minus integration of. What is differentiation of x? That is 1. What is integration of sin x? That is again minus cos of x dx. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा minus times x cos x and this is minus into minus cos x, that is plus times integral of cos x dx. So I is equal to minus x cos x. What is integration of cos x? You already know, that is sine of x plus constant of integration, that is c. These are some examples, simple examples based on the integration by parts. Here you have to take into consideration the sequence of functions as per the word ILATE, I-L-A-T-E. And as per this sequence you have to consider the order of the functions, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न के, जिस तरह हमने यहाँ पे x log x किया। So you can solve one more example of this pattern. You can solve x square log of x या कभी कभी x cube log of x। ऐसे इंटीग्रल्स को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड आई एम श्योर यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए। अब एक और पैटर्न के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, और ये पैटर्न यूज करके, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या आइलेट यूज करके हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और पैटर्न हम लेंगे, लाइक अगर हमारे पास एक फंक्शन है of the pattern x square log x तो हमने किया, x sin x हमने किया एंड x log x भी आप खुद कर सकते हो, हमने किया, x square log x आप खुद कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है I is equal to x sin inverse x dx, यहां पे दो फंक्शंस है, one is x that is algebraic function and another is sin inverse x that is inverse trigonometric functions। तो अगर हम पैटर्न देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, फर्स्ट वी हैव टू टेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x इनटू x dx। दिस बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन। सो यहां पे हम साइन इनवर्स x के बदले u और x के बदले v ले सकते हैं, ठीक है। हम फॉलो करेंगे वही uv पैटर्न जिसको हमने अभी प्रूव किया। आई कैन राइट sin inverse x into integration of x dx minus integration of differentiation of sin inverse x into integration of x dx whole dx। तो हम simplify करेंगे, this is sin inverse x, what is integration of x? That is x square divided by 2. Then we have differentiation of sin inverse x is 1 by under root of 1 minus x square. So what is integration of x? That is x square divided by 2 dx, ठीक है। तो यहां पे 2 जो है डिनोमिनेटर में वो कांस्टेंट है, आई कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। सो दिस इज x square divided by 2 sin inverse x minus 1 by 2 x square divided by under root of 1 minus x square। यहां पे अगर न्यूमरेटर में आप देखेंगे, this is x square and in the denominator we have minus x square। So let's take this negative inside and I write here plus and I write here minus x square। तो इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, this is x square by 2 sin inverse x plus 1 by 2 minus x square divided by under root of 1 minus x square dx। मैं न्यूमरेटर पे 1 ऐड भी सब्ट्रैक्ट 1 भी करता, ऐड भी 1 करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी 1 करता हूं। सो आई राइट 1 देन minus 1, ठीक है। दिस इज x square divided by 2 sin inverse x
plus 1 by 2, 1 minus x square divided by under root of 1 minus x square minus 1 by under root of 1 minus x square whole dx. तो x square divided by 2 sin inverse x, यहां मैं अलग अलग इंटीग्रल्स रखता हूं दोनों फंक्शंस पे. सो आई राइट 1 by 2 1 minus x square divided by under root of 1 minus x square dx. Then we have 1 by 2 into minus, that is minus 1 by 2 dx by under root of 1 minus x square. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. This is I is equal to x square by 2 sin inverse x. Then we have plus 1 by 2. यहां पे अगर देखेंगे this is 1 minus x square और ऊपर पावर 1 है. This is 1 minus x square and denominator में पावर 1 by 2 है. I can write 1 minus x square power 1 minus 1 by 2 dx. Then we have minus 1 by 2 sin, ये जो अगर आप देखेंगे dx by under root of 1 minus x square, differentiation of sin inverse x is 1 by under root of 1 minus x square. Integration of 1 by under root of 1 minus x square will be sin inverse x. ठीक है, अब हमें ये इंटीग्रल सिर्फ सॉल्व करना है. सो आई राइट x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x. ये मैं पहले ये टर्म लिखता हूं minus 1 by 2 sin इनवर्स x. Then you can solve it easily. Plus 1 by 2 1 minus x square under root of dx. ठीक है, अब ये देखिए ये एक और इंटीग्रल बन जाता है. You can solve it easily. और अगर आपने ये पहले ही किया होगा तो you can use formula or you can use different methods to solve this type of integral. इसको हम standard integral से भी solve कर सकते हैं. And we can write x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x plus 1 by 2. ये जो standard integral है this is equal to x under root of 1 minus x square by 2 plus a square by 2, that is 1 square by 2 sin inverse x by a, that means x by 1. ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे this is x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x plus 1 by 4 x under root of 1 minus x square. Then we have 1 by 4 sin inverse x plus c. यहां पे sin inverse x minus 1 by 2, यहाँ पे 1 by 4 sin inverse x. You can combine, you can add these two terms, and I write I is equal to x square by 2 sin inverse x. This is 1 by 4 and minus 1 by 2. I can write minus 1 by 4 sin inverse x plus 1 by 4 x under root of 1 minus x square plus c. This is the answer of this question. और ऐसे बहुत सारे पैटर्न, इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं. लाइक इंटीग्रल ऑफ x cos इनवर्स x, बिल्कुल इसी पैटर्न का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड देन वी हैव x tan इनवर्स x. इस किस्म के इंटीग्रल्स भी सॉल्व कर सकते हैं. This was all for today. We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.